ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਬਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਕੁਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਨਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰੰਦ ਪੈਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਨੀ ਵਿਆਹ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਲ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ। ਲਓ ਜੀ, ਖਲਾਵਾਸੀ। ਖਲਾਵਾਸੀ, मैं मुखातब हाँ, मैं मुखातब हाँ। खलावासी, मैं मुखातब हाँ, स्वीकार तो बाद, स्वीकार तो बाद इंज ना मिली। स्वीकार तो बाद इंज ना मिली भाई। जे स्वीकार कर लिया तो स्वीकार तो बाद इंज ना मिली। बारिश अंदरों अंदर, बारिश अंदरों अंदर भाई। हुण तक, हुण तक। पींग, पींग। फिर पौण तड़ागी, पौण, पौण तड़ागी। ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਈ। ਖਲਾਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੀਂਗ, ਪੌਣ ਤੜਾਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਰਡ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ। 9ਵੀਂ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਖੜੀ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 3-3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ 10-12, ਪਰੰਤੂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਤੇ BA ਪੱਧਰ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾਰਾ, ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ, ਇਕਾਂਗੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੇ ਵੱਧ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਆ ਚਾਂਸ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
लगना है लगना, बस आ चीज पक्की कर लो। हुण आपां एक जिहड़ी ट्रिक है उस दे बारे गल करिए। खला वासियो बारिश च हुण पींग पाउणी स्वीकारो। खला वासियो बारिश च पींग पाउणी स्वीकारो। लो जी, खला वासियो बारिश च हुण पींग पानी स्वीकारो भाई, स्वीकारो। खलावासी, खलावासी आ गया भाई। बारिश, बारिश अंदरों अंदर। हुण, हुण तक। पींग, पींग पई। पौन तड़ागी, पौन तड़ागी पई। खलावासियों बारिश च हुण पींग पाउणी स्वीकारो भाई। खलावासियों बारिश च हुण पींग पाउणी स्वीकारो। खलावासियों हो गया बारिश अंदरों अंदर, हुण तक, पींग, और ये है पौन तड़ागी। पौन तड़ागी, और फिर इत्थे स्वीकारो, स्वीकार तो बाद, स्वीकार तो बाद भाई। स्वीकार तो बाद भाई मैं मुखातब है ਤੁਹਾਨੂੰ। स्वीकार तो बाद इंज ना मिली, स्वीकार तो बाद इंज ना मिली। ये तो ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋੜਤਾ ਸੀ ਬਈ। स्वीकार तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ जाएगा, तो स्वीकार तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ आ भी याद आ जाएगा। स्वीकार तो बाद जे किसी ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार तो बाद इंज ना मिली बई मैं मुखातब हाँ, मैं तो आ गया बई। स्वीकार तो बाद इंज ना मिली मैं मुखातब हाँ। वरना आड याद कर लियो भाई, मैं मुखातब हाँ और स्वीकार तो बाद इंज ना मिली। आड याद कर लियो। इस सूत्र दे विच इन्नियां ही आणियां अपनियां। खला वासियो बारिश च हुण पीण पाउणी स्वीकारो। देखो बरसातां आंदियां सौण भादो च आपां पींघां दियां पांदे आ ना, तो देखो इस तरीके नाल तुसीं याद करना है। जदों बरसात दा मौसम आया, सौण दा मौसम आया बई, सावण दा, ठीक है, तो फिर पींघां आपी आपो उहदे नाल जुड़ गईयां। जदों ये चीज़ां जुड़ गईयां तो जिहड़ी लैन आपां बनाई है वो इस हिसाब नाल ही बनाई है कि सावण की जदों गल आवेगी तो फिर पींघां की गल आवेगी। तो आपां नूं याद रह जूगा वो खलावासी किथे पुराने टाइम च जिथे भी बई थोड़ी जगह मिलती सी उत्थे अगले पींघ पा लिया करते सीगे। पहला पिंडां दे किनारे, पिंडां दे नाल नाल जिहड़ी लगदी जमीन सी राज रकबा जिस दे अंदर बूटे ही बूटे लगे हुंदे सी ते उत्थे पींघां पाई जांदियां सी। उत्थे बेले जिन्हों कहंदे सीगे, उत्थे पींघ पा के कुड़ियां झोटियां करदियां सन। ते बस तुसीं आ लैन याद रखनी है, खला वासियो बारिश च हुण पीण पंगी, पीण पाउणी स्वीकारो पई। और स्वीकार ही कर लिया, स्वीकार तो बाद इंज ना मिली मैं मुखातब हाँ। जिवें मैं हुण तुहानूं मुखातब पढ़ा रहा भाई, स्वीकार तो बाद इंज ना मिली मैं मुखातब हाँ। संपादन, इन्ने कुछ कवितावां दे, कुछ किताबां दे इन्ने संपादन भी किए है बई। बलदे खेतां दे सरनावे, बलदे खेतां दे सरनावे देखो पंजाब समस्या तो संबंधित है। संपादन की गल करिए इसके, हुण आपां गल करदे हां संपादन की। संपादन दे विच बलदे खेतां दे सरनावे। लो जी, देखो नाम तो स्पष्ट है, बलदे खेत, बलदे खेतां दे सरनावे, नाम तो स्पष्ट है। पंजाब समस्या भाई, खेत बल गए, खेत बल गए। कहण दा भाव ये जिहड़ी किताब है पंजाब समस्या तो संबंधित है, समस्या तो संबंधित है। हुण उस तो बाद परिंदे कल्पना दे देश विच, जिहड़े परिंदे ने वो कल्पना दे देश च है बई। परिंदे कल्पना दे देश च, परिंदे कित्थे है बई, परिंदे ने कल्पना दे देश दे विच है परिंदे बई। और उस तो बाद पाश, जिथे कविता खत्म होती है, पाश, पाश के बारे बई अवतार पाश, अवतार सिंह संधू बई, उनकी भी आप गल करांगे।
वड्डा कवि है और अपने नाम भी दे रखे बई। पाश जिथे कविता खत्म नहीं हुंदी बई, जिथे कविता खत्म नहीं हुंदी। इन्हां किताबां दा उन्हें संपादन किया है बई। बलदे खेतां दे सरनावे, परिंदे कल्पना दे देश विच, पाश जिथे कविता खत्म नहीं हुंदी। देखो भाई संपादन किया 3 किताबां दा। एक है पंजाब समस्या संबंधित, एक परिंदे कल्पना के देश विच, एक पास जिथे कविता खत्म नहीं हुंदी। ये पंजाब आंदी आपां ये ले लिया बई, समस्या तो संबंधित है बलदे खेतां दे सरनावे। इस तरह आपां इहनूं अटैच कर लिया। जो आपां नूं पंजाब समस्या याद आवेगी तां बलदे खेतां दे सरनावे याद आ सकदा है। तां इथों पंजाब, परिंदे कल्पना के देश ते पास, पै 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 ये ने संपादन प्रमुख कवितावां इंदियां। और खड़ा साइकिल, खब्बल, नाप नाप, हाशल, वंड, जंगल दी चीख, कुड़ी करदी है सवाल, कब्रस्तान, उड़ान, तीला तीला, पछाण पत्तर, दहलीज दे इस पार, दहलीज दे इस पार। ये इंदियां प्रमुख कवितावां ने भाई। दोबारा फिर बोल देना। और खड़ा साइकिल, खब्बड़, खब्बड़ बड़ी मशहूर है भाई। और खड़ा साइकिल ते खब्बड़ लिख देना भाई मैं। और खड़ा साइकिल ते खब्बल आ तो इसका लिखते हैं भैया अपने बोर्ड की किताबों के अंदर है भाई। ता करके और एवं पूछ सकता है केड़ी कविता किस कवि दी है, वो अपने किते ना किते शामिल होनी चाहिए है भाई, ज्यादा संभावना उसी दी रहेगी। और खड़ा साइकिल, खब्बल, नाप नाप, हासल, वंड, जंगल दी चीक, कुड़ी करदी है सवाल, कब्रस्तान, उड़ान, तीला तीला, पछाण पत्तर, दहलीज दे इस पार। इंदे जिहड़े केंद्री पक्ष ने, विशा जिहड़े इंदे प्रमुख विषय ने, उन्हें इस्त्री संवेदना, औरत पक्ष नूं जबान दिती बई। केंद्री विषय, केंद्री जिहड़ा धुरा है इंदा भाई, केंद्री पक्ष है जिहड़ा इंदा, केंद्री धुरा है वह है इस्त्री संवेदना। इस्त्री की जिहड़ी संवेदना है उसनूं ऐसे कहा है। औरत पक्ष नूं जुबान दिती, वो तो एक ही गल होगी भाई। इस्त्री संवेदना है जोड़ी इंदा मुख पक्ष है भाई, इस्त्री संवेदना। हुण आपां गल कर लीए अगली डॉक्टर वनीता, उस तो पहला नवतेज भारती। अगला जिहड़ा अपना लिखारी है नवतेज भारती भाई। नवतेज भारती इस दियां भैया सिंबल दे फुल जड़ियां रचनावां ने। सिंबल दे फुल, लीला, जड़ी लीला किताब सी अजमेर रोडे नाल मिल के लिखी सी इन्हें, वड्डी पुस्तक है। एंडलैस आई अंग्रेजी लिखी है इन्हें भाई। हुण आपां गल कर रहे हैं नवतेज भारती दी भाई। नवतेज भारती इंदियां जड़ियां रचनावां ने भाई, काव रचनावां, उस दे अंदर सिंबल दे फुल, लीला, जड़ी लीला है भाई वो अजमेर रोडे नाल मिल के लिखी है। अजमेर रोडे, अजमेर रोडे नाल मिल के लिखी है भाई लीला। और ये वड्डी पुस्तक है। एक अंग्रेजी च भी है एंडलैस आई, एंडलैस आई आ अंग्रेजी च है। पर आपां नूं आई याद रह जाण बहुत दो ही, सिंबल दे फुल ते लीला। जड़ी एक लाली है वही लाली कविता है, उहदे च भूतवाड़े पटियाले नूं समर्पित है वो। और ये जड़ी लाली कविता है हर दिल जीत लाली बारे है। वार्तक पुस्तक भी है उनकी, जो तुरदे ने ते पुठ सिद्ध, जो तुरदे ने पुठ सिद्ध। परंतु आप जी नवतेज भारती रचनावां ने सिर्फ उनके बारे गल कर लीए। सिंबल दे फुल,
ਤੇ ਲੀਲਾ ਲੀਲਾ अजमेर रोडे नाल मिल के इहनूं सन्मान भी प्राप्त होया बई। अनाद काव्य सम्मान 2010 अजमेर रोडे नाल मिल के मिलिया सी बई। नवतेज भारती लंडन च रहिंदा बई, कई साल लंडन, और एक कनेडा का शहर ओंटारियो तो थर्ड आई पब्लिकेशन चलाउंदा रहा बई। ए नवतेज भारती विशा आंदे ने जेड़े कनेडा का शहर ओंटारियो है बई, उत्थों इन्हें चलाया है थर्ड आई पब्लिकेशन। विशा आंदे की है मनुखी अधिकार, नस्ली नस्लवाद है जेड़ा उसनूं रोकना बई। मनुखी अधिकारां, नस्ली दे औरतां दे हकां दी आवाज़ उठाई है। नस्ल के नाम से जोड़ा भेदभाव किया जाता है, नस्ली ते औरतां दे हकां बारे प्रतिबद्ध है बई, पूर्ण तौर पर प्रतिबद्ध है और आवाज़ भी चक्की है। व्यंग, कटाक्ष ते टिच्चर विधि बई, किसी टिच्चर करना, मजाक करना, व्यंग करना, कटाक्ष करना, ये इसकी विधि है। ते खुली कविता का कवि है भाई, खुली कविता, खुली कविता। ते उस तो अगे आप गल करिए डॉक्टर वनीता बई, मेरी जंग आदमी दे मत्थे विचले सप नाल है वनता दी बई। कविता दे विचों जिहड़ी प्रमुख सत्तर है उनकी आप गल की सी डॉक्टर वनीता बई। इहदे विचों भी पूछा जा सकता है। नवतेज भारती नूं आपां थोड़ा लाइट जा लिता है बई, उस तो बाद क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत घट संभावना है, परंतु फिर भी थोड़ा जा दसता बई। डॉक्टर वनीता, डॉक्टर वनीता है जो ऐसिया कवितावां भी ने बई, BA पद्धर ते भी पंजाब बोर्ड वगैरह शामिल ने, इस कारण इनू लिखा है आपां। इहदियां काव्य पुस्तकां सुपनियां दी पगडंडी, हरियां छावां दी कबर, बोल अलाप, मंदर सप्तक, खरज नाद, काल पहर, ये है बई इहदियां काव्य रचनावां बई। लो जी इंदियां रचनावां ने जो एक एक करके आप लिखते हैं। सुपनियां दी पगडंडी, सुपनियां दी पगडंडी, हरियां छावां दी कबर, हरियां छावां दी कबर, बोल अलाप, बोल अलाप भाई, मंदर सप्तक, मंदर सप्तक, खरज नाद, खरज नाद, काल पहर, काल पहर, ये इंदियां कवितावां ने बई। काल पहर ते घड़ियां, काल पहर ते घड़ियां। डॉक्टर वनीता, डॉक्टर वनीता की रचनावां सुपनिया दी पगडंडी, हरियां छावां दी कबर, बोल अलाप, मंदर सप्तक, खरज नाद, काल पहर ते घड़ियां, ये डॉक्टर वनीता दियां रचनावां ने। और काल पहर ते घड़ियां लई, काल पहर ते घड़ियां लई 2010 दे अंदर, 2010 विच काल पहर ते घड़ियां लई भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार उसनूं मिलिया है भाई। और इहदा जिहड़ा विशा है वो हैगा है निज मूलक भावां नूं इस्त्री अस्तित्ववाद दे प्रपेख च पेशकारी है। जिहड़े निज मूलक भाव है उनके भाव है जिहड़े वो इस्त्री अस्तित्व संबंधी पेशकारी, अपने निजी भावां नूं इस्त्री दे अस्तित्व राही उन्हें पेश किया है भाई। यानी कि अपनी जिहड़ी निज दे भावां नूं पूरे इस्त्री दे भाव है जो उसने बना लिया है भाई। और भारतीय संस्कृति के हवाले नाल कविता कहंदियां वो बुद्धक भी हो जाती है। खुली कविता लिखी है भाई उसने, खुली कविता है जो उसने लिखी है भाई डॉक्टर वनीता ने भाई। और नारीवादी कवित्री है,
नारीवादी कवित्री हैगी है बई डॉक्टर वनीता। ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਵ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ, ਹਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕਬਰ, ਬੋਲ ਅਲਾਪ, ਮੰਦਰ ਸਪਤਕ, ਖਰਜਨਾਦ, ਕਾਲ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ। ਕਾਲ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2010। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਨਿੱਜ ਮੁਲਕ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ